دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے آلریڈی پچھلے کچھ دنوں کے اندر یہ خبر کہیں نہ کہیں پر پڑھ ہی لی ہوگی کہ سعودی عربیہ نے ایک ایسے ایگریمنٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو پچھلے 50-60 سال سے سعودی عربیہ اور امریکہ کے بیچ ہوا کرتا تھا۔ وہی ایگریمنٹ کہ جس کو پیٹرو ڈالر کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس کی چرچائیں پچھلے 3-4 دن سے لگ بھگ پوری ہی دنیا کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہیں۔ کیا امریکن میڈیا، کیا یوروپین، کیا افریقن، کیا چائنا، انڈیا، ہر طرف اسی پیٹرو ڈالر کی چرچا ہو رہی ہے۔ چرچا ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ جہاں ایک طرف اس فیصلے کو سعودی عربیہ کے لیے بہت ہمت بھرا قدم مانا جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف امریکہ کے لیے ایک ایسا بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے کہ جو اس کو پچھلے 40-50 سال کے اتہاس میں تو کبھی بھی نہیں لگا تھا۔ ایک ایسا جھٹکا کہ جو اس کی اکانومی اور اس کی کرنسی ڈالر کو تو ہلا کر رکھ ہی دے گا، ساتھ ہی ساتھ اس کی جو سپر پاور کی حیثیت ہے، جو سپر پاور کی کرسی ہے، اس کو بھی پوری طریقے سے الٹ سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ ہے کیا؟ یہ امریکہ اور سعودی عربیہ کے بیچ کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ اب سعودی عربیہ اس کو کیوں ختم کر رہا ہے، اور ختم ہونے سے ایسا بھی کیا ہو جائے گا جو یہ کہا جانے لگا ہے کہ اس سے پوری دنیا میں قائم امریکہ کا یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ پوری طریقے سے ہل سکتا ہے۔ تو سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے۔ جیسا کہ ہم سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی تو یورپ سمیت دنیا کے لگ بھگ سارے ہی علاقے پوری طریقے سے تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ ہاں، ایسے حالات میں اگر کوئی ایک دیش سب سے زیادہ طاقتور اور امیر بن کر ابھرا تھا تو وہ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کیونکہ اسی دیش نے اس جنگ کے اندر ان سارے یورپین دیشوں کو بھر بھر کر ہتھیار بیچے اور ہتھیاروں کے بدلے میں ان سارے ہی امیر دیشوں کا سونا اپنے یہاں پر جمع کر لیا، اور خود اچھی لوکیشن پر قائم ہونے کی وجہ سے اس جنگ وغیرہ سے ہمیشہ محفوظ رہا۔ حالانکہ اس جنگ میں امریکہ کو بھی کودنا پڑا تھا، مگر بالکل آخری وقت میں، اسی لیے اس کا نقصان بھی بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ فی الحال ورلڈ وار ختم ہو جانے کے بعد تباہ و برباد ہو چکے یورپ کو دوبارہ سے آباد کرنے کی ذمہ داری امریکہ نے اٹھائی، مگر ہاں فری میں نہیں بلکہ پیسے کے بدلے میں۔ ان سارے ہی یورپین دیشوں کو امریکہ نے بھر بھر کر لون دیا، مگر ساری اپنی شرطوں پر، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ وقت کے بعد ہی جب یورپ اور باقی علاقے نارمل ہوئے، مطلب پٹری پر واپس آئے، تو ان کو احساس ہوا کہ وہ آلریڈی اکانومیکلی امریکہ کے ٹریپ میں پھنس چکے ہیں اور امریکہ کے غلام بن چکے ہیں۔ اور اس طرح سے ہی نہ صرف امریکہ کا ڈالر طاقتور بننا شروع ہوا بلکہ پوری دنیا کی اکانومی پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا راج بھی شروع ہوا۔ مگر دوستو یہ تو سب شروعات تھی، کیونکہ اصلی کھیل تو سن 1974 میں ہوا کہ جب تیل کی دنیا کے بادشاہ یعنی کہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے بیچ پیٹرو ڈالر نام کا یہ ایگریمنٹ ہوا یہ تھا کہ سب سے پہلے تو 1973 میں ایجپٹ اور سیریا جیسے دو مسلم دیشوں کی اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں شروعاتی دنوں میں ایجپٹ اور سیریا نے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھت بنائی۔ اسرائیل کو بھی لگ بھگ اپنی ہار کا یقین ہو چکا تھا، مگر تبھی امریکہ نے جب اسرائیل کے فیور سے گیند نکلتی ہوئی دیکھی تو پورا ایک آپریشن لانچ کیا، جس کے تحت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی گئی کہ بس تم جنگ میں بنے رہو، باقی پیسہ، ہتھیار یا پھر انٹیلیجنس سب کچھ ہمارے اوپر چھوڑ دو۔ اس آپریشن کے تحت امریکہ نے ہتھیار یا باقی ساری چیزیں اسرائیل میں اتنی تیزی کے ساتھ بھیجنا شروع کی کہ مانو کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جاتا تھا کہ جب امریکہ کا کوئی پلین، کوئی جیٹ اسرائیل میں اترتا نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف سعودی عربیہ سمیت باقی عرب دیشوں نے جب امریکہ کو اسرائیل کی اس طرح سے لگاتار کھلے عام مدد کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے امریکہ کو سمجھانے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں فائنلی سعودی عربیہ کی لیڈرشپ میں ان سارے تیل والے مسلم دیشوں کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ لیا گیا کہ جس کو اس وقت تک تو امریکہ نے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، اور وہ فیصلہ تھا تیل بندی کا۔ یعنی ان سارے دیشوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ سمیت ان سارے ویسٹرن دیشوں کو تیل ہی نہیں دیں گے کہ جو اس جنگ میں اسرائیل کو کھلے عام سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور تو اور تیل بندی کے ساتھ ساتھ ان سارے دیشوں نے آئل پروڈکشن بھی گرا دیا، جس کی وجہ سے امریکہ میں ہاہاکار مچ گیا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی تیل کی قیمت کئی سو گنا بڑھ چکی تھی اور شارٹیج اس لیول کی ہو چکی تھی کہ لوگوں نے گاڑیاں اپنے گھروں کے اندر کھڑی کر لی تھیں اور سڑکوں پر اب گھوڑا گاڑی وغیرہ نظر آنے لگی تھی۔
अमेरिका समेत कई वेस्टर्न देशों के बड़े बड़े शहर भी बिजली न होने की वजह से अंधेरे में जा चुके थे। पेट्रोल पंप तो पूरी तरह से बंद हो ही गए थे। कई इंडस्ट्रीज ने भी काम करना बंद कर दिया था क्योंकि उनके पास फ्यूल ही नहीं था। इन्फ्लेशन रेट भी आसमान पर पहुंच चुका था। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि अब इन सारे वेस्टर्न देशों ने आपस में मिलजुल कर ही इस बड़ी मुश्किल को टैकल करने का फैसला किया। इन सभी के बीच अब एक के बाद एक मीटिंग होने लगी थी और उसी दौर में ही वो सारे ग्रुप वजूद में आए थे कि जिनको आज के दौर में हम लोग G7 या फिर G20 के नाम से जानते हैं। फिलहाल जंगबंदी तो खत्म हो ही गई थी और इस जंग के खत्म होने के कुछ महीनों के बाद ही अमेरिका समेत ये सारे वेस्टर्न देश अरब देशों को इस तेलबंदी को खत्म करने के लिए भी कन्विंस करने में कामयाब हो गए थे। मतलब अरब देशों ने एक बार फिर से इनको तेल वगैरह देना शुरू कर दिया था। और तभी ऐसे माहौल में 1974 में फाइनली अमेरिका ने एक ऐसा दांव चला, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बड़ा फैसला लिया कि जो उसके लिए इतना ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ कि जितना ज्यादा फायदेमंद शायद पिछले 60-70 साल के इतिहास में कोई दूसरा फैसला नहीं हुआ होगा। उसने सऊदी अरबिया के साथ मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग बनाई, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसी डील की कि जिसको हम लोग पेट्रो डॉलर के नाम से याद करते हैं। इसके तहत अमेरिका ने सऊदी अरबिया को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि तुम फ्यूचर की चिंता ना करो, चाहे इजराइल हो या मिडिल ईस्ट में इस तरह का कोई और भी बड़ा खतरा हो कि जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इन सब से निपटने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। मतलब मैं सऊदी अरबिया की या फिर सऊदी अरबिया में मौजूद तुम्हारी हुकूमत की हिफाजत करूंगा, तुमको डिफेंस के मामले में खूब मदद करूंगा। बस बदले में तुम्हें इतना करना है कि तुम और तुम्हारे ये जो सब छोटे छोटे अरब देश मिलकर पूरी दुनिया को तेल बेचते हैं, ये जब भी बेचो तो डॉलर में बेचो, यानी कि हमारी करेंसी में। सऊदी अरबिया इस बात के लिए राजी हो गया और तब से लेकर अब तक लगातार हम देखते हैं कि तेल जैसी दौलत कि जो पूरी दुनिया के लिए अभी भी सबसे कीमती चीजों में से एक मानी जाती है, उसके पूरे व्यापार पर डॉलर छाया हुआ है। सारे तेल के ट्रेड का डॉलर के जरिए से होना था कि मानो वो डॉलर के जो पहले ही दुनिया की ताकतवर करेंसी बन चुका था, वो तो मानो आसमान पर पहुंच गया। न सिर्फ हद से ज्यादा ताकतवर बल्कि स्टेबल और भरोसेमंद भी हो गया। दुनिया के सारे देशों को अब जो भी जरूरत पड़ती वो सब कुछ डॉलर में ही करते, क्योंकि यही सबसे ज्यादा भरोसेमंद करेंसी थी, स्टेबल थी, फ्यूचर भी इसी का सबसे ज्यादा महफूज नजर आ रहा था। इसीलिए अब दुनिया के ताकतवर देशों ने भी अपने जो फॉरेन रिजर्व थे वो डॉलर में रखने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ इसी डॉलर के बलबूते पर ही अब धीरे धीरे अमेरिका ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर ही अपनी पकड़ बना ली और इस तरह से उसको कंट्रोल कर लिया कि माना जाने लगा कि मानो अब कभी भी अमेरिका के हाथ से दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम नहीं निकल पाएगा। शायद ऐसा होता भी अगर अमेरिका इस डॉलर की ताकत को एक वेपन यानी कि हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करता। हुआ ये कि अब अगर अमेरिका की किसी से भी कोई नोकझोंक होती, किसी से कोई दुश्मनी होती, या इजराइल जैसे उसके किसी दोस्त से किसी की दुश्मनी होती, तो फिर वो उस दुश्मन को इसी डॉलर के बलबूते पर टैकल करने की कोशिश करता, यानी डॉलर की ताकत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता और उस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा देता, जिससे होता ये कि उसको बाकी दुनिया के जरिए से व्यापार वगैरह करने में तो प्रॉब्लम होती ही, साथ ही साथ उसने जो पिछले कई सालों से अपने देश की जमा पूंजी डॉलर की शक्ल में बाहर रखी हुई थी उस पर भी खतरा मंडराने लगता। अमेरिका ने वक्त के साथ साथ इस डॉलर की ताकत को एक वेपन के तौर पर रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे न जाने कितने ही देशों के खिलाफ इस्तेमाल किया। कितने ही देशों की बाहर रखी हुई डॉलर की शक्ल में जो जमा पूंजी थी उसको फ्रीज किया। और हद तो तब हो गई कि जब आपने खुद भी देखा होगा कि रशिया के केस में तो ये भी बात चलने लगी कि रशिया का जो फॉरेन रिजर्व डॉलर की शक्ल में यूरोप वगैरह में पड़ा हुआ है, उसको फ्रीज करने की बजाय उसके ही दुश्मन यानी यूक्रेन को थमा दिया जाए ताकि वो उसी पैसे को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अब आप समझ सकते हैं कि ये एक दुश्मन के खिलाफ भी की गई सबसे गिरी हुई और घिनौनी हरकत हो सकती है। मगर दोस्तों सच्चाई तो ये है कि जैसे जैसे अमेरिका ने डॉलर की ताकत को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया था, वैसे वैसे जो दूसरा ग्रुप था यानी कि अमेरिका का विरोधी ग्रुप, उसने भी अपना काम शुरू कर दिया था। और ब्रिक्स जैसा एक ग्रुप वजूद में आया कि जिसका मेन मकसद ही यही है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका के उस कंट्रोल को खत्म किया जाए कि जो उसने पूरे दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम पर बना कर रखा हुआ है। और साथ ही उसका मकसद ये भी है कि डी डॉलराइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया जाए, मतलब जो डॉलर
इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है, इतना कॉमन हो गया है और उसकी जो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पर इतनी ज़्यादा पकड़ हो गई है, उसको ख़त्म किया जाए और बाकी लोकल करेंसीज को या फिर एक नई सिमिलर करेंसी को बढ़ावा दिया जाए। वैसे तो ब्रिक्स ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी के साथ ताकतवर हुआ है, नए नए देशों ने इसको ज्वाइन किया है और ऑलरेडी इसने अमेरिका और उसके ग्रुप की नींदें उड़ा रखी हैं। मगर असली झटका अभी कुछ दिन पहले उस वक्त लगा कि जब सऊदी अरबिया के जो अभी तक तो ब्रिक्स का ऑफिशियली मेंबर नहीं है मगर बहुत जल्द ही मेंबर होने वाला है, उसने एक बड़ा फैसला लिया। उससे रिलेटेड ये खबर निकल कर आई कि पेट्रो डॉलर नाम का वो एग्रीमेंट कि जो अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच 1974 में हुआ था और इसी 9 जून को ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में सऊदी प्रिंस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये फैसला किया है कि वो उसको रिन्यू नहीं करेंगे, यानी अब उस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने का कोई भी इरादा नहीं है। ये खबर ज्यादा चौंका देने वाली इसलिए भी थी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स देशों की मीटिंग हुई है और बहुत दिनों से ही लगातार ये खबर भी चर्चाओं में चल ही रही है कि सऊदी अरबिया जल्द ही ऑफिशियली ब्रिक्स को ज्वाइन करने जा रहा है। और इस तरह का अब ये फैसला लेना क्लियरली दिखाता है कि मानो ये फैसला ब्रिक्स के इशारे पर ही लिया गया है। वैसे आपको बता दूं कि इस पूरे मैटर से सऊदी अरबिया का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो अब फ्यूचर में तेल बेचेंगे दुनिया भर में वो डॉलर में नहीं बेचेंगे, डॉलर को खत्म कर देंगे, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि वो तेल को सिर्फ डॉलर में नहीं बेचेंगे। मतलब अब लोकल करेंसीज में तेल खूब बढ़ चढ़कर बेचा जाएगा, चाइना को चाइनीज की करेंसी में, रशिया को रशिया की करेंसी में, इंडिया को इंडिया की करेंसी में बेचा जा सकता है। इसके अलावा अरब की लोकल करेंसीज जो हैं उनकी दिरहम दीनार उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर जो डिजिटल करेंसी है यानी कि बिटकॉइन जिस पर बहुत लंबे वक्त से जोर भी दिया जा रहा है वो सब भी इस्तेमाल में आ सकती हैं। अब इस्तेमाल कुछ भी हो, कुल मिलाकर नुकसान सिर्फ और सिर्फ डॉलर का ही होगा। अहमियत डॉलर की गिरेगी, वर्ल्ड इकोनॉमी से जो पकड़ कमजोर होगी वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की होगी। दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है और ब्रिक्स अपने मकसद में कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इस चीज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2-3 महीने पहले ही कि जब ये सऊदी अरबिया वगैरह वाली खबर का भी कोई अता पता नहीं था, तब भी अमेरिका के जो पिछले राष्ट्रपति हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि दुनिया के ये जितने भी देश, जितने भी लीडर डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब डॉलर की बजाय दूसरी करेंसीज के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं, मैं उन सब के खिलाफ एक्शन लूंगा अगर मैं पावर में आ गया। जाहिर है इससे क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप का इशारा रशिया, चाइना, इंडिया, बाकी अरब कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, ईरान, इन सारे ही देशों के ऊपर था। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस नए मामले की वजह से अमेरिका के ऊपर क्या असर पड़ेगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय के जरिए से जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।